Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to online classes of Iqra First Boys Secondary Schools, our project of Iqra Education System. Dear students, in the last video lecture, as I committed to you that we would be explaining and understanding interrogative pronouns in this video lecture. Here we are with interrogative pronouns. But before I further go ahead, I would like to give you a little or brief recap of all the types of pronouns we have so far gone through. As I told you, pronoun is a word which is used at the place of noun. And there are 5 different types of pronouns. Personal pronouns, which are subject and object pronouns. Possessive pronouns, which are determinate and possessive. Self pronouns, which are reflexive and emphatic, and these 3 pronouns, personal, possessive and self, are interrelated to each other, and we drew a chart on the board of all these 3 interrelated pronouns. Then in the last video lecture, we discussed about demonstrative pronouns, this, that, these and those. And today we are here with interrogative pronouns. As it appears from the name of this pronoun that it is used in interrogative sentences, and of course yes it is. So interrogative pronoun is a pronoun which is used to ask about place, person, thing, method, reason, etc. I've explained you here that which is used for what. Who is used for somebody? When you are asking about somebody, you use who. When you are asking about something, you use what. When you are asking about a place, we use where. When asking about time, we use when. When asking about reason of anything, we use why. When asking about possession, we use whose. And when asking about method, we use how. I am going to give you some examples here on the board for your better understanding. You can see I have exemplified the use of who in 2 sentences. Ali called me. In this sentence, Ali is also somebody, me is also somebody. Let's make Ali unknown. When we make Ali unknown, so we are asking about Ali. So Dash called me. When Ali is unknown, we use who instead of Ali. So that becomes, as it is being used instead of noun. देख रहे हैं आप who, Ali noun है, Ali की जगह पर who आ रहा है, तो ये pronoun तो हो ही गया. और चूंकि सवालिया pronoun है तो इसको interrogative pronoun कहा. तो अली को जब unknown किया तो ये जुमला बन गया who called me, किसने मुझे कॉल की. इसी तरह अगर मैं अली कॉल्ड मी में मी को अननोन कर दूं, ये भी somebody है, इसके लिए भी who आएगा, तो जुमला क्या बनेगा, who did Ali call. ये अली कॉल्ड मी पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो हमने सवालिया जुमला बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लाते हैं. तो सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ गया did Ali call, और who फॉर मी को अननोन किया तो ये who आ गया, who did Ali call. यहाँ who called me, इसका मतलब किसने मुझे कॉल की, सब्जेक्ट अननोन है. जब यहाँ ऑब्जेक्ट अननोन किया somebody में, who did Ali call, अली ने किसको कॉल की. Here in these 2 examples, I have exemplified something as unknown. In the first example, my bike broke down. My bike is something. If I make it unknown, अगर मैं इसको unknown कर दूँ, हमें नहीं पता कि किस चीज़ की बात हो रही है, तो उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं समथिंग के लिए. भाई समथिंग के लिए हम what का इस्तेमाल करते हैं. What broke down, क्या चीज़. My bike broke down, मेरी बाइक ख़राब हो गई. ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, जबकि ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी मशीनरी का ख़राब होना. तो my bike broke down, मेरी बाइक ख़राब हो गई. क्या ख़राब हो गई, what broke down. तो what का इस्तेमाल हमने my bike की जगह किया. सेकेंड एग्जाम्पल है, you ate burger. In this sentence, burger is mentioned here. If we make it unknown, अगर हम burger को unknown कर दें तो जुमला हो जाएगा what did you eat. What did you eat, तुमने क्या खाया. So what का इस्तेमाल burger की जगह पर. और आपको ये बात यहाँ बताता चलूँ
कि सवालिया जुमले में हम हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं. वी ऑलवेज यूज ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ एनी स्पेसिफिक टेंस, whatever tense it is, we always use the auxiliary verb at the beginning of the sentence before the subject. But when we are using WH word, we will bring WH word even before that auxiliary verb. ऑक्सिलरी वर्ब तो सब्जेक्ट से पहले आता ही है सवालिया जुमले में, लेकिन अगर WH वर्ड लगा हुआ हो तो वो WH वर्ड उस ऑक्सिलरी वर्ब से भी पहले आता है. Is that clear? Let me give you some more examples of different WH words. Here you are with the rest of the examples of WH words. The exemplary sentence written before you is they go to park in the evening on cycles to play. वो पार्क जाते हैं शाम में साइकिल पर खेलने के लिए. I have underlined 4 phrases here in this exemplary sentence. Number 1 है to park, number 2 है in the evening, number 3 है on cycles, number 4 है to play. क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैंने इन 4 फ्रेजेस को अंडरलाइन क्यों किया है? जी, जिन बच्चों ने जवाब दिया एक्सेलेंट टू देम, और जो नहीं दे पाए नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन यू. इस एग्जाम्पलरी सेंटेंस में दे गो टू पार्क इन द इवनिंग ऑन साइकिल्स टू प्ले, 4 फ्रेजेस को अंडरलाइन करने का मकसद है 4 मुख्तलिफ चीज़ों को आइडेंटिफाई करना. नंबर 1 टू पार्क, इट मीन्स प्लेस. हम पहले जुमले में, ये जो हमने 4 जुमले सॉल्व किए हुए हैं WH वर्ड में बनाए हुए हैं, पहले जुमले में हम प्लेस को अननोन करेंगे, दूसरे जुमले में हम इन द इवनिंग यानी कि टाइम को अननोन करेंगे. नंबर 3 ऑन साइकिल्स, तीसरे जुमले में हम मेथड को, कि कैसे जाते हैं, मेथड को अननोन करेंगे, और चौथे जुमले में टू प्ले खेलने के लिए, तो क्यों जाते हैं रीज़न को अननोन करेंगे. तो आप देख सकते हैं प्लेस, टाइम, मेथड, रीज़न, और हम एक एक करके इन हर एक फ्रेज को अननोन करेंगे और उसका सेंटेंस बनाएंगे. नंबर 1, वेयर डू दे गो इन द इवनिंग ऑन साइकिल्स टू प्ले. अब आप देख सकते हैं इसमें प्लेस को अननोन किया है तो प्लेस की जगह पर वेयर आ गया, बाकी जुमला दे गो इन द इवनिंग ऑन साइकिल्स टू प्ले एज इट इज इसमें मौजूद है, सिर्फ प्लेस की जगह पर वेयर आ गया. वेयर डू आएगा क्योंकि सवालिया जुमला है, प्रेजेंट सिंपल का ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है दे से पहले, और सब में आएगा आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले. तो वेयर डू दे गो इन द इवनिंग ऑन साइकिल्स टू प्ले. सेकेंड सेंटेंस में हम टाइम को, इन द इवनिंग, टाइम को अननोन करते हैं. अब जो जुमला हम बनाएंगे उसमें सिर्फ इन द इवनिंग अननोन होगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज होंगी. ये देख सकते हैं व्हेन डू दे गो टू पार्क ऑन साइकिल्स टू प्ले. इसी तरह सेंटेंस नंबर 3 में ऑन साइकिल्स, मेथड को, कैसे जाते हैं, मेथड को अननोन करेंगे, उसकी जगह हाउ लगाएंगे, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा. हाउ डू दे गो टू पार्क इन द इवनिंग टू प्ले. और नंबर 4 टू प्ले यानी कि रीज़न को अननोन करेंगे कि क्यों जाते हैं पार्क शाम में साइकिल पर. वाई डू दे गो टू पार्क इन द इवनिंग ऑन साइकिल्स. अब यहाँ पर टू प्ले अननोन है तो टू प्ले की जगह वाई लगा दिया. तो आपने देखा कि हम अगर किसी प्लेस को अननोन करेंगे तो वेयर लगाएंगे, ये वेयर लगाया. टाइम को अननोन करेंगे तो व्हेन लगाएंगे. अगर हमें मेथड नहीं पता होगा तो हाउ लगाएंगे. रीज़न नहीं पता होगा तो वाई लगाएंगे. यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई. ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. अब हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे. सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.